good morning to all of you. Hopefully you all are well at home. We have already started the chapter Human Health and Diseases, in which we have studied the different kind of the viral diseases. Today we will talk about some bacterial diseases that are caused by bacteria like typhoid, pneumonia, tuberculosis, etc. and some protozoan diseases, that is mainly malaria. Is it clear? So one by one I will take up all the diseases. Yes students, now these are few bacterial diseases that we have to do. So many bacterial diseases are there in your book, but we have to do few of them which are mentioned especially in your NCERT book. ठीक है बेटा, अब हमारे पास जो सबसे पहला डिजीज़ है दैट इज़ द टाइफाइड. कॉमनली आप लोगों ने सुना होगा टाइफाइड के अंदर. अब टाइफाइड सबसे पहला है कॉजल ऑर्गेनिज्म. इट इज़ कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी, दैट इज़ द बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी. ओके, एंड व्हाट इज़ इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन? बाय फीकल ओरल रूट. मैंने आपको बताया था कि किसी भी डिजीज़ को स्प्रेड होने के लिए एक वे है, एक रास्ता है कि वो ट्रांसमिट कैसे होगी. तो पहला है हमारे पास दैट इज़ फीकल ओरल रूट इन केस ऑफ टाइफाइड. फीकल ओरल रूट का मतलब क्या है कि जिस पर्सन को टाइफाइड है उसके फीकल मैटर से somehow that enter into the digestive tract, digestive canal of the healthy person, and that person will also get the infection. तो ये फैलेगा कैसे? Obviously by the contaminated food. Okay, so next is the typhoid Mary is the classical example of the classical case in medicine history. What is there in case of the typhoid Mary? She was a cook by profession and she spread continuously for several years the typhoid by cooking the food. She was herself the carrier for this typhoid. Okay, now what are the symptoms? You have observed that high fever is there in case of the typhoid, and one more very important symptom is there, that is the stomach pain. Yeah, abdominal pain is there. Pulse rate is low. What is the treatment? That is the terramycin and chloromycetin is given. That are the antibiotics which are given. When we observe the symptoms, what are the symptoms? I told you that is the abdominal pain along with frequent stools. Okay, abdominal pain and frequent stool, that is the case of the typhoid. In severe cases, even there can be the perforations of intestine occur. This is very important feature which is usually asked in the board exam. कि टाइफाइड के अंदर एब्डोमेन में इवन पोर्स दैट इन द इंटेस्टाइन में गट में पोर क्रिएट हो जाते हैं. तो आपको समझ आया, टाइफाइड दैट इज कॉज्ड बाय द साल्मोनेला टाइफी. फीकल ओरल रूट से ये ट्रांसमिट होती है और इसका इम्पॉर्टेंट सिम्टम है दैट इज एब्डोमिनल पेन. क्लियर? और ये क्वेश्चन बार पेपर में आया हुआ है बेटा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि टाइफाइड क्या है, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सिम्टम्स क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज निमोनिया. इट इज कॉज्ड बाय अनदर बैक्टीरिया दैट इज द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe. क्लियर? एंड व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन? बाय द स्पूटम, बिकॉज इट क्रिटिकली अफेक्ट द लंग्स. तो जिस पेशेंट को निमोनिया है उसके स्पूटम से ये स्प्रेड होगा. ओके, now what happens in this? Lymph and mucus get collected in the bronchi and the alveoli. आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था लंग्स का, जिसके अंदर आपने फर्दर डिविजन्स पढ़ी थी. +1 में आपने पढ़ा था ना कि ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स बनते हैं और एल्वेलाई बनते हैं लंग्स के, है ना. तो वहाँ पे म्यूकस कलेक्ट हो जाएगा या लिम्फ कलेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? प्रॉपर एयर नहीं होगी लंग्स के अंदर, प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा, तो पेशेंट को सांस लेने में भी मुश्किल आएगी. ठीक है, तो दैट इज द केस ऑफ निमोनिया. उसके बाद इसका ट्रीटमेंट कैसे है? कहते हैं एल्वेलाई एंड ब्रोंक्यूल्स दे आर अफेक्टेड, मेनली अफेक्टेड इन केस ऑफ निमोनिया. देन व्हाट इज द ट्रीटमेंट? दैट इज द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, दैट इज यूजुअली गिवन. क्लोरामोफेनिकोल is also given to treat the pneumonia. Okay, now we will take up the another very important bacterial disease जो कि बड़ी commonly हम कहते हैं कि आसपास
हो जाती है अक्सर लोगों को गंदे खाने से, कॉन्टेमिनेटेड फूड, कॉन्टेमिनेटेड वाटर से। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज विब्रियो कॉलेरा, यानी कि कॉलेरा को जो स्प्रेड करने वाला बैक्टीरिया है दैट इज कोमाशी, विब्रियो कॉलेरा। ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? फीकल ओरल रूट, वही कॉन्टेमिनेटेड फूड से हमारी बॉडी के अंदर, जैसे समटाइम हम कुछ इस तरीके का खा लेते हैं बाहर से और समटाइम हमारे पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग, लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो दैट इज कॉलेरा। ओके, तो दैट स्प्रेड बाय द फीकल ओरल रूट। और रॉबर्ट कोश दैट फर्स्ट रिपोर्टेड अबाउट द कॉलेरा। ओके, फिर सिम्टम्स क्या हैं? मैंने अभी आपको बताया, व्हेन वी गेट द इन्फेक्शन ऑफ दिस बैक्टीरिया देन द फ्रीक्वेंट स्टूल्स, राइस वाटर लाइक स्टूल्स एंड रिपीटेड वॉमिटिंग। अब लगातार लूज मोशन होंगे, लगातार वॉमिटिंग होगी, देन व्हाट विल हैपन? डिहाइड्रेशन हो जाएगी, बॉडी फ्लूइड्स का अमाउंट कम हो जाएगा बॉडी में। व्हाट विल हैपन देन? कि डिहाइड्रेशन ना हो जाए, वी हैव टू गिव द ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, यानी कि जिसमें ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन हमें देना पड़ेगा। आपने ORS के बारे में सुना होगा, ORS जो मार्केट में डिफरेंट फ्लेवर्स में अवेलेबल है, बट अगर कभी ऑफ द टाइम ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि वॉमिटिंग, लूज मोशन लगातार है, तो एट होम ऑल्सो वी कैन प्रिपेयर द ORS by adding a 1 spoon of the sugar to the 1 glass of water and a pinch of salt, so that the level of electrolytes in our body fluids can be maintained. Clear? तो समझ आया आपको? ये बहुत छोटे होते से हमको बताई जाती हैं बातें। तो कॉलेरा को ट्रीट किस तरीके से किया जाता है? एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और बॉडी में पानी की कमी ना हो इसके लिए ORS रेगुलर दिया जाता है। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट है इसके अंदर मेडिसिन, आई टोल्ड यू अबाउट द एंटीबायोटिक दैट इज टेट्रासाइक्लिन। क्लियर? नेक्स्ट इज ट्यूबरकुलोसिस। Tuberculosis that mainly affect the lungs, but it also affect the lymph nodes, blood, that is the bones and the joint also. Bacteria कौन सा है? That is Mycobacterium tuberculosis. Okay. Now what is the mode of transmission? किस तरीके से, क्योंकि ये कैसे अफेक्ट करता है? Mainly it damage the tissue and release a toxin that is tuberculin. Very important one mark question, that it release a toxin that is tuberculin which affect the lungs, lymph nodes, bones, joints. Clear? And how it spread? If it is related to the lung, then it's spread by the pulmonary, means it's spread by the droplet infection. If it is affecting the lungs. Okay. Then what are the symptoms? जब हम pulmonary TB की बात कर रहे हैं, तो what are the major symptoms? First, very high fever can be there in the evening, night sweating, right? Weakness, the person feel very weak, fatigue all over the day, and growth proper नहीं होगी if it is in the child. Cough, blood containing sputum, pain in chest, loss of weight, and loss of appetite, failure of appetite, and body temperature rising. So these are few features of the symptoms of TB, commonly called as TB. And prevention, that is by streptomycin and rifampicin. These are the antibiotics which are given in case of tuberculosis. Okay. When we talk about the test, this is the Montex test is done to test the presence of TB, and here the Vidal test is done to detect the presence of typhoid. Okay, ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि what are the different tests to diagnose the different diseases. Okay, yes beta, now we are going to start with a very important disease, that is a protozoan disease, malaria, जो कि कॉमनली आप लोग ऑब्जर्व करते हो. एंड फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस डायग्राम इज द most expected diagram in the exam. So you should draw this diagram, even write the process, the how the life cycle of the Plasmodium occur, complete life cycle you should draw. This is the life cycle of the Plasmodium virex, that is the causal organism for the malaria. आपने हमेशा ये सुना कि मलेरिया तो मॉस्किटो बाइट से फैलता है, बट मॉस्किटोज आर द वेक्टर्स. मॉस्किटो सिर्फ बीमारी करने वाले एजेंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं. मॉस्किटोज आर नॉट द रीजन फॉर द डिजीज, दे आर स्प्रेडिंग, मीन्स दे आर द
vector for the transmission of Plasmodium that is responsible for the malaria. तो Plasmodium क्या है? It's a protozoan that is responsible for the disease malaria. Okay, and this is Plasmodium. It's a digenetic, means it has the two hosts, primary host that is female mosquito and the secondary host that is the human being. And now I will tell you in detail about the life cycle of the Plasmodium parasite. I just want to make it one more thing clear here, that it does not affect the mosquito. Okay, means mosquito is a vector only. मतलब mosquito क्या कर रहा है? प्लाज्मोडियम को एक से दूसरे तक पहुंचाने का काम कर रहा है. जो मॉस्किटो है वो प्लाज्मोडियम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में हेल्प कर रहा है. और बट ये प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया मॉस्किटो को अफेक्ट नहीं करता. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम पैरासाइट. नाउ इट हैज़ द टू होस्ट. Its asexual phase is in the human being and the sexual phase in the mosquito. Okay. Now, when a mosquito bite to a infected person, it take the most infective stage, that is the sporozoid. तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से ही लर्न कर लो कि इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है जो मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन से अपने साथ लेके चलता है. मतलब अगर मुझे मलेरिया है फर्ज करो, तो मॉस्किटो मुझे बाइट करेगा, देन इट विल टेक अप फ्रॉम माय ब्लड द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम, दैट इज स्पोरोजॉइड. ओके, अब नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन इट रिलीज द स्पोरोजॉइड, मतलब जब उसने बाइट किया तो वो इन्फेक्टिव स्टेज अपने साथ कौन सी लाया था? स्पोरोजॉइड लेकर गया, है ना. आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट क्लियर कि स्पोरोजॉइड मॉस्किटो की बॉडी से कहाँ आ गए? ह्यूमन हेल्दी पर्सन के अंदर. नाउ व्हाट विल हैपन? दिस स्पोरोजॉइड विल एंटर इनटू द लिवर सेल. देन दीज लिवर सेल बर्स्ट एंड दिस कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई. स्पोरोजॉइड लगातार मल्टीप्लाई करेगा. देन इट रीच, मतलब ब्लड के थ्रू ये लिवर में गया. देन इट एंटर इनटू द रेड ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये एंटर करेगा और फास्ट डिवाइड करता जाएगा. एंड द रेड ब्लड सेल्स बर्स्ट टू रिलीज द मैनी पैरासाइट इन द ब्लड. तो आरबीसी लगातार बर्स्ट कर रही हैं, पैरासाइट का नंबर लगातार बढ़ रहा है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग के अंदर हो रही है. नाउ व्हेन द आरबीसी बर्स्ट, द पैरासाइट्स आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड. Along with this, there is a release of hemozoin. This hemozoin is responsible for the chillness. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब मलेरिया होता है तो एकदम बहुत ज़ोर से ठंड लगती है, एकदम चिलनेस फील होती है और बहुत तेज़ बुखार होता है. The reason for chillness is the release of hemozoin toxin. और ये कब हुआ? सबसे पहले when a mosquito bite to the healthy person, then it release the sporozoid. Then sporozoid enter into the liver cell, multiply there asexually. Then it enter into the red blood cells of the healthy person. But now the malarial parasite is in the RBCs. Now this RBC will burst to release the hemozoin granules into the blood. Now this hemozoin toxin that cause the chillness and rise in fever occur. Now this infect the new RBC, क्योंकि अभी लगातार जो पैरासाइट है डिवाइड कर रहा है, आरबीसी बर्स्ट हो रहे हैं और ये नए नए सेल्स को इन्फेक्ट कर रहा है. इसीलिए मलेरिया के अंदर एनीमिया भी हो जाता है. एनीमिया, ब्लड में आरबीसी कम हो गए हैं. क्यों? क्योंकि आरबीसी लगातार बर्स्ट कर रहे हैं. ओके, ये पैरासाइट मल्टीप्लाई कर रहा है एसेक्सुअली. नाउ देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन द ह्यूमन बॉडी. क्लियर? तो यहाँ तक क्या होता है, ये सारा का सारा पार्ट कहाँ हुआ? ह्यूमन बॉडी के अंदर. कैसे? पहला स्पोरोजॉइड्स आए बॉडी में, स्पोरोजॉइड्स ने लिवर सेल को इन्फेक्ट किया, लिवर सेल्स के बाद आरबीसी को अफेक्ट किया, आरबीसी बर्स्ट होते गए, हीमोजोन रिलीज होता गया और अब प्रोड्यूस हो गए मेल एंड फीमेल गैमेट्स. देन व्हेन मॉस्किटो बाइट टू दैट इन्फेक्टेड पर्सन, नाउ इट विल टेक अप द गैमेटोसाइट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी कि अब वो अपने साथ क्या लेकर जाएगा? मेल एंड फीमेल गैमेट. देखो यहाँ पे मॉस्किटो ने इस पर्सन को बाइट किया जिसके अंदर मलेरिया एंटर कर चुका है, मलेरियल पैरासाइट, इसे मलेरिया है. अब ये अपने साथ क्या लेकर जाएगा? गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट.
Then these male and female gamete that will fuse, the fertilization occur in the mosquito body. Are you getting my point? अब जितना भी सेक्सुअल फेज का जो फिनोमिना है प्लाज्मोडियम का, वो मॉस्किटो की बॉडी के अंदर होगा. Here male and female fuse and fertilization occur. Then it form the oocyst and ookinete oocyst is formed and then it enter into the, first it is there in the stomach wall of the mosquito, then it enter into the body cavity and then it reach the salivary gland of mosquito and the infective stage is sporozoid. बताया था मैंने आपको. And now these sporozoids are present in the salivary gland of mosquito. When this mosquito will go to the healthy person, then it release the sporozoid into the fresh organism. यानी कि वो नए ऑर्गेनिज्म में जाएगा और स्पोरोजॉइड्स रिलीज कर देगा. बट विल हैपन देन अगेन, उस अब नए पर्सन को भी क्या होगा, स्पोरोजॉइड उसकी लिवर सेल्स में एंटर करेंगे, फिर आरबीसी में एंटर करेंगे, फिर मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होंगे. मॉस्किटो बाइट कर लेगा अगर उस पर्सन को, तो वहां से प्लाज्मोडियम को लेकर किसी और पर्सन में भी छोड़ आएगा और ड्यूरिंग दैट वहां पे सेक्सुअल फेज होगा मॉस्किटो की बॉडी के अंदर. मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे, oocyst ookinete ये बनेगा एंड देन इट फॉर्म द स्पोरोजॉइड. यहाँ देख रहे हो आप, ये सलाइवरी ग्लैंड के अंदर स्पोरोजॉइड्स रिलीज हो रहे हैं और जब फिर से मॉस्किटो किसी और पर्सन को बाइट करेगा तो क्या होगा, वो स्पोरोजॉइड उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे. इज इट क्लियर? तो ये सारा जो लाइफ साइकिल है इसको आपने दो तरीके से लिखना है, एक डायग्रामेटिक फॉर्म में, दूसरा आपने इसका फ्लो चार्ट बनाना है और तीसरा आपने लिखना है कि ह्यूमन होस्ट के अंदर कौन से इवेंट हैं लाइफ साइकिल के, मॉस्किटो के अंदर कौन से हैं, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के. समझ आया आपको? दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट इन द मॉस्किटो एज वेल एज इन द ह्यूमन. तो आपने एक तो ये डायग्राम बनाना है, दूसरा फ्लो चार्ट बनाना है और तीसरा आपने दोनों को अलग अलग लिखना है कि मॉस्किटो के अंदर ये प्रोसेस, ये स्टेप्स हैं और ह्यूमन के अंदर ये स्टेप्स हैं. क्लियर? तो यहाँ पे जो मॉस्किटो है, अब देखो एक पर्सन को फर्ज करो मलेरिया है, पर जो ये मॉस्किटो है वो फैलाने का काम कर रहा है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर. तो अगर मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रोक दिया जाए, मॉस्किटो लार्वा को किल कर दिया जाए, तो मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है ना. तो इसीलिए कहा जाता है इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, किल द मॉस्किटोज, किल देयर लार्वास, है ना. मतलब हमें मॉस्किटोज की स्प्रेडिंग को रोकना है, उनकी ब्रीडिंग को रोकना है. जैसे अब रेनी सीजन है, ऑब्वियसली मॉस्किटो लार्वास विल बी देयर. मॉस्किटो दे विल डिवाइड वेरी फास्ट, reproduce very fast and they will become as a vector for the transmission of malarial parasite, that is plasmodium. Is it clear? So this is very important. What is malaria, how it is caused and what is its mode of transmission, what is the life cycle of malarial parasite. Yes students, now these are the different species of the malarial parasite and the different type of malaria we have to do, and this is quite important for your NEET exam, so listen very carefully. Plasmodium vivax, that is you have commonly listened about this species. It is most common species in India and the recurrence of fever after the 48 hours, यानी कि third day there is a recurrence of the fever. It is called as benign tertian malaria. टाइप ऑफ मलेरिया इट इज कॉल्ड बेनिग्न टर्शियन मलेरिया, क्योंकि तीसरे दिन जाके फीवर हो रहा है. ओके, देन प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, इट इज मेनली ग्रेटेस्ट किलर इन द अफ्रीका एंड रेकरेंस अगेन आफ्टर द थर्ड डे एंड इट इज कॉल्ड मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया. ओके, देन वी हैव प्लाज्मोडियम मलेरियाई. It is mainly affecting the tropical Africa, Burma, Sri Lanka. Here the recurrence of the fever occur after 72 hours, means after the fourth day the fever occurs. Okay, it is called quartal malaria. Then we have Plasmodium ovale. It is the rarest in India. Okay, it mainly affect tropical Africa. And it is called as the mild tertian malaria. Okay, so you should keep it in mind what are these types of the malaria and name the species of that particular plasmodium which cause this malaria. ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही important है नीट के अकॉर्डिंग.
देन वी हैव द सिम्टम। सिम्टम आपको पता है मलेरिया में क्या होते हैं, वेरी हाई फीवर 106 डिग्री, और हेडेक, स्लीपलेसनेस, भूख ना लगना, बहुत तेज़ बुखार हो जाना, पूरी बॉडी में पेन रहना, एंड फ्यू दीज सिम्टम्स आर देयर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल की किस तरीके से। देखो दो तरीके हैं, एक है ट्रीटमेंट और एक है प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट में कि अगर किसी को मलेरिया है तो क्या करें, उसको क्यूनीन दें, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्यूनीन दैट इज फ्रॉम द सिंकोना ट्री एंड दैट हेल्प इन द मलेरिया, ओके, टू क्योर द मलेरिया। देन प्रिवेंशन कि हम होने ही ना दें मलेरिया, क्या करना चाहिए उसके लिए, मेन एजेंट कौन है, मॉस्किटो, तो हमें क्या करना है, मॉस्किटोज के स्प्रेड को रोकना है, या हमें जैसे पानी जहाँ पे भी इकट्ठा किया जाता है वहाँ पे हमें लार्विवोरस फिशेज लाइक गैम्बूसिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गैम्बूसिया लार्विवोरस फिश जो मॉस्किटो लार्वा को ही खा जाती है, आपने बायो कंट्रोल एजेंट में भी पढ़ा था, तो वो क्या होगा, मॉस्किटो लार्वा को खा जाएगी, देन देयर विल बी नो मॉस्किटोज टू स्प्रेड द मलेरिया। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द मलेरिया, व्हाट इज इट्स ट्रांसमिशन, what is the life cycle of the plasmodium, what are the different types of malaria, what are the different species of malaria, how it can be prevented and how it can be controlled. Now the next very important disease, that is the amoeboisis. Yes beta, the next disease, that is amoeboisis. It is caused by Entamoeba histolytica. One thing I want to tell, that it's a monogenetic, means it complete its life cycle in human beings, okay, single host is there, and pathogen lives in the large intestine of the human being. Mode of transmission by the fecal oral route and by the vectors, by the flies and the cockroaches. They can bring the Entamoeba histolytica and to the food of the human being. Then the cyst that remain unaltered in the stomach by the digestive juices, no effect is there. But when trypsin comes from the intestine, the cyst wall get break up and parasites are released into the large intestine and into the intestinal region, and there they multiply and live the normal life. Okay. Then it is dimorphic, that it has the two form, magna and the minuta. Means one is a large and harmful, minuta that is a smaller one and that is harmless. When we talk about the symptoms, then there is a blood with the fecal matter comes, and the different type of the medicines are available like albendazole, like that. Okay, so Entamoeba histolytica, it's a protozoan and that cause the amoeboisis. This is another very important 3 marks question. You should do this by doing that. What are the symptoms? Name the causal organism, mode of transmission, mode of infection, and what are the symptoms. Clear? Yes beta. Now these are few diseases that are caused by the nematodes. This particular page is very very important. There are the different diseases, like first of all that is ascariasis. जैसे आपने पेट के कीड़े सुना होगा बेटा, basically these are roundworms और it is caused by Ascaris lumbricoides. Okay, and it's an endoparasite that lives in the small intestine of the human being. What is its symptom? Mainly because it enter into the alimentary canal of the human being and obstruct the intestinal passage. Even diarrhea, vomiting, loose motion, pain, extreme pain. बच्चे के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट बात आपको बताऊं, जनरली जो बच्चे आप सुना होगा कि बच्चे छोटे बच्चे हैं वो मिट्टी खाते हैं। एक्चुअली द सिस्ट दैट आर प्रेजेंट इन द सॉइल that enter into the alimentary canal of the kids, and from the stool they comes out, they remain unaltered and they enter into the soil, and from the fecal matter they again enter into the alimentary canal of the human being. So fecal oral route is there, from the soil the kids can take. ओके, तो इसमें क्या है कि छोटे बच्चों के लिए डिवॉर्मिंग की जाती है, स्पेशली फ्रॉम 1 to 4 years किड्स. डिवॉर्मिंग मीन्स सिंपली जेंटिल और ऑयल ऑफ चिनोपोडियम, एल्बेंडाजोल भी आप लोगों ने स्कूल में सुना होगा, एल्बेंडाजोल दी जाती है, वो डिवॉर्मिंग के लिए होती है कि अगर हमारे हो सकता है हमारे पानी के अंदर उसका सिस्ट हो, है ना, जो हम पानी पी रहे हैं, या सॉयल से या कॉन्टेमिनेटेड या कहीं से भी वो हमारे फूड के अंदर एंटर कर सकता है. फिर आता है, तो आपको याद रहेगा एस्कैरिसिस, दैट इज कॉज्ड बाय एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडिस. क्लियर? दिस इज अ राउंड वर्म. ओके,
अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज दैट इज फाइलेरियासिस, इसको एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। इट इज कॉज्ड बाय 2 स्पीशीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई एंड वाउचेरिया मलाई। ओके, इसमें क्या होता है, जब इन्फेक्शन होता है तो पर्सन का जो फुट है या लेग है, लोअर लिम्ब है और स्क्रॉटम है, दैट गेट द साइज ऑफ द एलिफेंट फुट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस। क्लियर? When we talk about the mode of transmission, transmission कैसे होगा? By the bite of female क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्लियर? समझ आया? यानी कि ये कैसे वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई मलाई हमारी बॉडी में एंटर करेगा? बाय द बाइट ऑफ द मॉस्किटो। When we talk about the symptom, I told you that is a swelling of the leg or the scrotum and treatment that is the albendazole। ये 2 डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। रादर जैसे मैंने आपको एस्कैरियासिस, अमीबियासिस और ये एलिफेंटियासिस, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। फिर आती हैं कुछ फंगल डिजीज जो आप कॉमनली ऑब्जर्व करते हो, रिंगवॉर्म है ना, गर्मी के स्पेशली इसमें जब ह्यूमिडिटी भी है, वार्म टेम्परेचर है, देन देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ द रिंगवॉर्म दैट इज कॉल्ड एज टीनिया ऑल्सो। दिस इज अ फंगल डिजीज। ठीक है, तो कैसे होती, कैसे एक से दूसरे में कैसे जाएगी? अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन की पर्सनल चीज़ें या उसके टावल या उसके कपड़े या पर्सनल आइटम्स हम उसकी यूज़ करते हैं, देन इट कैन स्प्रेड। When we talk about the different species of the fungi, different organisms these are there, जैसे ट्राइकोफाइटोन है, ये इन्फेक्ट करता है स्किन को, हेयर को, नेल्स को, है ना। समटाइम आपने देखा ना, स्किन पे प्रॉब्लम हो जाती है, हेयर में फंगस हो जाता है जिसे आप डैंड्रफ बोलते हैं, तो दैट इज अ फंगस। ठीक है, कई बार किसी के नेल्स में इन्फेक्शन हो जाता है। देन एपिडर्मोफाइटोन दैट अटैक द स्किन एंड द नेल्स, दैट अटैक द स्किन एंड नेल्स, नॉट ऑन द हेयर्स। ओके, and microsporum that infect the hair and skin, not on the nails। तो ये तीनों आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं नीट के पेपर के लिए भी, सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए भी, कि कौन हेयर को इन्फेक्ट करता है अटैक, कौन नेल को, कौन स्किन को और कौन तीनों को अटैक करता है। तो ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम, ये तीनों नाम आपको फंगस के पता होने चाहिए। और सिंपल सी बात है, अगर आप फंगस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो यू हैव टू यूज एंटी फंगल, दैट इज द ग्रीसियोफुल्विन विच इज गिवन ऑरली। ओके, एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं आपको, जैसे हम यूज़ करते हैं डैंड्रफ है तो वी यूज़ गुड क्वालिटी ऑफ द शैम्पूज, बट एक्चुअली डैंड्रफ विल नॉट गो विद द गुड क्वालिटी ऑफ शैम्पू। आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? एंटी फंगल कुछ यूज़ करना पड़ेगा, आपको ऑयल में मिक्स करना पड़ेगा। व्हेन यू विल अप्लाई देन फंगस विल बी किल्ड एंड योर हेयर विल बी फ्री फ्रॉम द डैंड्रफ। ओके, तो थोड़ा साइंटिफिकली यूज़ किया करो, अप्लाई किया करो अपनी डेली लाइफ में भी, कि अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो दैट विल नो go with the good quality of the shampoo, rather you have to use a antifungal to remove that fungus। okay, तो ये कुछ डिजीजेस थी बेटा जो आज हमने पढ़ी हैं, एस्कैरियासिस, एलिफेंटियासिस एंड फंगस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजीजेस। ऑल these diseases you should learn and keep it in your mind। Thank you so much।